Hello viewers, welcome back to my channel. Today we will see according to the point of view नेट एंड सेट एग्ज़ाम। आज का हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्जीनिया वुल्फ। नेट और सेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो वर्जीनिया वुल्फ born in 1882 and died in 1941. She is a daughter of Leslie Stephen, a Victorian man of letters. Her siblings were Vanessa, Toby, and Adrian. She married the writer Leonard Woolf. उनकी शादी लेनार्ड वुल्फ से हुई थी। एंड दे बोथ टुगेदर फाउंडेड द हॉगर्ड प्रेस। उन्होंने एक प्रेस को फाउंड किया था। उस प्रेस का नाम था हॉगर्ड प्रेस। पार्ट ऑफ शी इज़ द पार्ट ऑफ ब्लम्सबरी ग्रुप ऑल्सो। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक, देखो ब्लम्सबरी ग्रुप में कौन कौन से मेंबर थे? लियोनार्ड वुल्फ थे, वर्जीनिया वुल्फ थी, वेनेसा, क्लाइव बेल, लेटन स्ट्रैची थे, ई.एम. फॉस्टर। और हमेशा क्वेश्चन में अगर ब्लम्सबरी ग्रुप पे क्वेश्चन बनता है तो आपको कुछ नाम दिए जाते हैं और उसमें से वी हैव टू फाइंड आउट हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इट और हु इज़ द मेंबर ऑफ ब्लम्सबरी ग्रुप। ओके, ऑल इन्फ्लुएंस बाय द जी मूर्स प्रिंसिपिया एथिका से। तो वर्जीनिया वुल्फ के फिक्शन हम देखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ फिक्शन emphasize on private life, loneliness, love, friendship and art. She ignores external society. There is a remarkable lack of interest in other surrounding. It is express the character, not preach doctrines, sing song or celebrate the glories of British Empire. The work is not like that. She always focus on, she attacked the materialism of Glassworthy and Bennett for assuming that the external detail of people's life can reveal there. Okay, so what are the feature of वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल? वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स के फीचर्स क्या थे? तो एक्सपेरिमेंटल, impressionistic, emphasis character analyze and personal consciousness. If you take the example that Clarissa, that how employs the stream of consciousness techniques in it. So these are the kind of the features of her novel that it, as is a modernist. Then which are the early novels of Virginia Woolf? Virginia Woolf's early novels are that The Voyage Out, which is wrote in 1915, introduced the character Clarissa Dalloway. Then Night and Day in 1999 contrasts the daily life with the romantic attachment of two. Then Acquaintance, Catherine Hebre and Mary Detach. Now she wrote some short stories also, and here the name of the short stories as Kew Garden, which was in 1919, Monday or Tuesday in 1921. Some experimental novels she wrote, that is Jacob's Room, which is 1922. Jacob's Room sequentially if asked the work of Virginia Woolf, then Jacob's Room which was in 1922. देन मिसेस डॉलवे जो था वो 1925 में, टू द लाइट हाउस 1928 में, और ऑरलैंडो जो है बायोग्राफी 1929 में। तो पहले जॉकब्स रूम आया, उसके बाद मिसेस डॉलवे आया, उसके बाद टू द लाइट हाउस आया, उसके बाद ऑरलैंडो आया। ये जो है वो एक सीक्वेंसली आपको याद रखना। Now we talk about Jacob's Room. Jacob's Room, which is one published in 1922. Central character is Jacob Flanders. Who is the central character? Jacob Flanders, a lonely young man unable to synthesize his love classical culture with the chaotic reality of contemporary society, and notably the turbulence of World War I. If you see the Jacob's Rooms, the character Jacob Flanders is a lonely man unable to. It is a kind of a notably turbulence of the First World War we can see in this novel. Then the novel is full of letters and conversation. This novel full of letters and conversations and reveal the impossibility of communication and human connection. Then the story is unraveled by the women in his life, including his mother. Struck like a building Roman but not a plot oriented in jealous pursuit of classism. Jacob studies the ancient at a Cambridge and traveled to Greece. Then what happened next? He either idolize or ignore the women who admire him. At the end of the novel, scattered objects in an abandoned room are all that remain of Jacob's life. Okay. The last word are, what are the last word of this Jacob's room? A pair of Jacob's old shoes, indicating that the protagonist is no more. मतलब ये इस नॉवल का जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट जो सेंटेंस है वो है कि अ पेयर ऑफ जॉकब्स ओल्ड शूज, मतलब इंडिकेट करता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है जॉकब फ्लैंडर है वो नहीं रहे। ओके, देन उसके बाद आया मिसेस डॉलवे।
मिसेस डॉलोवे 1925 में आया था। कवर्स ऑन, जो मिसेस डॉलोवे लिखा गया है वो जो कवर करता है, जो स्टोरी है या उसका जो टाइम प्लेस है वो है कवर्स वन डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इन वन वीमेंस लाइफ। एक वीमेन की लाइफ दिखाई गई सुबह से नाइट तक। सो क्लैरिसा डॉलवे जो है एन अपर क्लास हाउस वाइफ है। शी वॉन्ट टू थ्रो अ पार्टी एंड शी वॉन्ट टू सम परचेज सम फ्लावर्स, और उसे खरीदने के लिए वो लंदन जाती है। दो हर लंदन नेबरहुड टू अपीयर फॉर पार्टी शी विल लॉस दैट इवनिंग, और वो देखती है व्हाट इज़ अ मटेरियलिस्टिक लाइफ इन लंदन एवरीवेयर, एंड शी इज़ काइंड ऑफ ए न्यू फॉर हर। एंड ओल्ड सूटर एंड फ्रेंड पीटर वॉल्श जो है उसे वहाँ मिलता है ड्रॉप बाय हर। उसे एक अपना पुराना फ्रेंड मिलता है, इसका नाम है पीटर वॉल्श, और वो उसे ड्रॉप करता है। हाउस अनएक्सपेक्टेडली ईयर्स अर्लियर क्लैरिसा रिफ्यूज। ओके, पीटर्स मैरिज प्रपोजल एंड पीटर हैज़ नेवर क्वाइट गॉटन आउट। बट पहले जो क्या हुआ था कि जो पीटर वॉल्श है उसने क्लैरिसा को प्रपोज किया था, पर उसने मना कर दिया था, पर पीटर अभी तक उसे नहीं भूला है। ओके, पीटर आस्क क्लैरिसा इफ शी इज़ हैप्पी विथ हर हस्बैंड, और वो पीटर उसे पूछता है क्लैरिसा क्या वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है। देन रिचर्ड बट बिफोर शी कैन, क्योंकि क्लैरिसा जो है उसके हस्बैंड का नाम है रिचर्ड, और पीटर वेस्ट जो है उसका पुराना दोस्त है, उसने उसे क्लैरिसा को प्रपोज भी किया था। फिर क्लैरिसा ने उस प्रपोजल को मना कर दिया है, एंड फिर पीटर उसे मिल जाता है लंदन मार्केट में जब वो फ्लावर्स खरीदने जाती है, और वो पूछता है कि कैन यू हैप्पी, शी इज़ हैप्पी विथ हर हस्बैंड रिचर्ड। बट बिफोर शी कैन आंसर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शिफ्ट टू that Septimus, a veteran, okay, of World War First, who was injured in trench warfare and now suffers from shell shock. Then Septimus was a budding young poet and lover of Shakespeare. When the war broke out, the enlisted immediately for romantic patriotic reason. He became numb to the horror of war and its aftermath. When his friends even died, he felt little sadness. Then Sir William Septimus, psychiatrist, planned to send him to the mental institution. Then Dr. Holmes arrives and skepticism, fear the doctor will destroy his soul. So this kind of the story goes थ्रू इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। एंड क्लैरिसा वर्क हार्ड टू मेक द पार्टी ग्रेट सक्सेस, और क्लैरिसा बहुत मेहनत करती है कि उसकी जो पार्टी है वो ग्रेट सक्सेसफुली हो जाए, बट फील्स डिससेटिस्फाइड बाय हर ओन रोल। फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कमी छोड़ दी। देन कॉन्शियस ऑफ पीटर्स क्रिटिकल आई, क्योंकि हर जगह उसे अपने उस पीटर वॉल्श के क्रिटिकल आई दिखते। सो शी हियर्स अबाउट स्पेक्टिज्म डेथ एंड अंडरस्टैंड, और फिर स्पेटिमस की डेथ हो गई, उसे समझता है दैट ही वॉज ओवरलेम्ड बाय लाइफ एंड दैट मेन लाइक विलियम मेक हिम intolerable. Clarissa identified that Septimus admiring him for not compromising his soul, और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो सुसाइड किया या उसकी जो डेथ हो गई वो इसकी वजह से हो गई, या काइंड ऑफ ए नॉट आइडेंटिफाइंग। क्लैरिसा आइडेंटिफाई विद द सेप्टिमस एडमायरिंग हिम नॉट फॉर द कॉम्प्रोमाइजिंग हिज सोल। ओके, देन उसके बाद आता है द आवर्स बाय कनिंगहैम। द आवर्स जो है वो कनिंगहैम ने लिखा है। एक्चुअली इट इज़ रिटन बाय कनिंगहैम। कनिंगहैम एक ऑथर है और उन्होंने लिखा है द आवर्स ए नॉवल। नॉवल 1998 नॉवल बाय द माइकल कनिंगहैम, जिसे पुलित्जर प्राइज भी मिला है 1999 में। 3 जनरेशन ऑफ वीमेन अफेक्टेड बाय वुल्फ इन द नॉवल, मतलब इस नॉवल में द आवर्स में मिसेस क्लैरिसा भी आती है, जो हमने देखा था अभी यहाँ पे, क्लैरिसा मिसेस डॉलवे, क्लैरिसा डॉलवे। उसके बाद मतलब ये जो कैरेक्टर है डॉलवे का वो भी आता है द आवर्स में। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ खुद भी आती है, देन उस मिसेस ब्राउन भी है। ओके, सो द ऑथर एज वेल एज द राइटर एंड द वन कैरेक्टर, दीज आर द कैरेक्टर इन द नॉवेल द आवर्स, और इसको लिखा है माइकल कनिंगहैम में, और उसे पुलित्जर प्राइज भी मिला है 1999 में। और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए गए, इसमें वर्जीनिया वुल्फ भी है, मिसेस डॉलवे भी है, मिसेस ब्राउन भी है। मेड इन एन ऑस्कर विनिंग मूवी, और इस पर एक ऑस्कर विनिंग मूवी भी बनी है। देन उसके बाद आता है द लाइट हाउस। द लाइट हाउस विच इज़ इन 1928 फाइनेस्ट वर्क इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक फाइनेस्ट वर्क माना जाता है। इसमें रैमसे फैमिली दिखाई जाती है, द रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ रैमसे फैमिली सेट इन द आइलैंड इन द हेबिरडस और द हेर्बिडस। ये जो नॉवेल है वो 3 सेक्शन में आता है। पहला सेक्शन है द विंडो, दूसरा है टाइम पासेस, और तीसरा है टू द लाइट हाउस। द विंडो ओपन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द मिडल एज कपल Mr. Ramsay and Mrs. Ramsay bring their 8 children to their summer home.
और यहाँ पे द लाइट हाउस में एक फैमिली है, उस फैमिली का मेन है मिस्टर रैमसे है, मिसेस रैमसे है, उनके 8 चिल्ड्रन है। वो समर में द विंडो जो है पहला सेशन स्टार्ट होता है एंड मिसेस रैमसे आर्ग्यूज हर यंगेस्ट सन जेम्स दैट दे विल विजिट द लाइट हाउस टू द नेक्स्ट डे। और जब नॉवेल की शुरुआत होती है तो मिसेस रैमसे जो है अपने यंग सन से जेम्स के साथ वो आर्ग्यू कर रही होती है अश्योर सर, और वो उसको श्योरिटी दे रही होती है कि हम नेक्स्ट डे कहाँ जाएंगे, लाइट हाउस को विजिट करेंगे। अ फ्यू फ्रेंड ऑफ द रैमसेस वेर वेरी डिफरेंट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर आर विजिटिंग देम। देन उसके बाद दूसरा जो है नॉवेल जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो दूसरा जो है वो है टाइम पासेस। 10 ईयर पास, 10 साल गुजर जाते हैं ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड वॉर बिगेन एंड एंड। मिसेस रैमसे इज नो मोर, मिसेस रैमसे नहीं रहती, उनकी डेथ हो गई। हर डॉटर प्रू डाइज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्ड बर्थ एंड हर सन एंड्रू इज किल्ड विद द वॉर। उनका एक बेटा जो है सन एंड्रू, वो उसकी भी डेथ हो गई वॉर में। और प्रू को डिलीवर करते टाइम मिसेस रैमसे की भी या कुछ चाइल्ड बर्थ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई। सो रैमसे समर हाउस इज दैट dilapidated, the remaining family members and guests revisit the house. Then third part is that the lighthouse. Mr. Ramsay finally planned to taking the long delayed trip to the lighthouse with his son James and daughter Camelia. Then James keeps the sailing boat steady and he hears praises instead of usual harsh word. Then provide a rare moment of connection between father also changes. Art is perhaps the only surety in the world destined and determined to the change. So the Lily because a painter is trying to paint a picture throughout the novel and at the end she completes. मतलब नॉवेल में एक लिली ब्रिस्को है, वो एक पेंटिंग पेंट करने की कोशिश कर रहा है होल नॉवेल में और इन द लास्ट उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, देन उसके बाद आता है द डार्क नॉवेल्स ऑफ 1930s। ऑरलैंडो अ बायोग्राफी। ऑरलैंडो एक बायोग्राफी 1928 में एंटी नॉवेल इसे कहा जाता है। टेल द स्टोरी ऑफ मैन हु टर्न इनटू अ वुमेन। एक ऐसे मैन की स्टोरी है जो वुमेन में टर्न हो जाता है। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वर्जीनिया वुल्फ फ्रेंड विटा सैकेवली वेस्ट एंड डिफाइज द कन्वर्सेशन ऑफ द जॉनरा ऑफ नॉवेल एंड सटायराइज द कन्वेंशन यूज बाय हिस्टोरिकल बायोग्राफीज। ऐसे माना जाता है कि या उन्होंने ओपनली ये माना है कि वर्जीनिया वुल्फ और विटा सैकेवली दोनों के रिलेशन थे, any kind of that lesbian, and it is a novel which is Orlando, the person who is a man but feel like a woman, as like that it is the story of the dark Orlando. Then उसके बाद आता है The Waves which was published in 1931, an unconventional novel presenting the story through 6 character। एक unconventional novel है जो 6 character की story point of view से present करता है। Describe as a prose poem that flushed a biography 1933, a biography of the cocker. Then Spaniel owned by the Victorian poet Elizabeth Barrett Browning also. Then the year 1937, Woolf's longest novel, The Last, published in her lifetime the history of the upper class Parrigator family from the 1880s to the mid 1930s, originally conceived as a novel essay. देन बिटवीन द एक्ट्स 1941 वुल्फ फाइनल नॉवेल। बिटवीन द एक्ट जो है 1941 में आया था, वो वर्जीनिया वुल्फ का फर्स्ट फाइनल नॉवेल कहा जाता है जो उनके आफ्टर डेथ पोस्टमोसली पब्लिश हुआ था। द एक्ट रेफर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले इन विलेज ऑफ इंग्लैंड just before the outbreak of World War. The act refer देन टू वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड वर्जीनिया वुल्फ एज एन एसेइस्ट। फिर उन्होंने कुछ फेमस ऐसे लिखे हैं, इनके ऐसे पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, उसमें अगर पूछा जाए तो फेमस है या इम्पोर्टेंटली हर बार रूम ऑफ वंस ओन पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी दिसंबर 2023 में नेट एग्जाम में भी रूम्स ऑफ वंस ओन पे क्वेश्चन आया था। तो वर्जीनिया वुल्फ एज एन एसेइस्ट, हर एसेज कंसर्न फेमिनिज्म एंड पेसिसिज्म। द कॉमन रीडर 1925 फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसेज, उनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एसे है वो है द कॉमन रीडर जो 1925 में आया था। इन द प्रीफेस शी कोट्स डॉक्टर जॉनसन, शी प्रेजेस द कॉमन रीडर। देन मॉडर्न फिक्शन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मटेरियलिस्ट राइटर्स एंड राइटर लाइक जॉयस एंड द हर्सेल। देन द मॉडर्न एसे, फिर मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, हाउ इट स्ट्राइक टू कंटेम्प्ररी, देन मोमेंट ऑफ बीइंग, ये जो है इनके फेमस एसेज है।
उसके बाद अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 हेल्ड एज द फेमिनिस्ट बाइबल, इसे फेमिनिस्ट बाइबल भी कहा गया है। एन एक्सपांशन ऑफ हर लेक्चर ऑन वीमेन एंड फिक्शन डिलीवर, उन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था वीमेन एंड फिक्शन पे, उसमें से ये लिखा हुआ पार्ट है। एडवांस द थेसिस दैट वीमेन मस्ट हैव मनी एंड रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज राइट टू फिक्शन, और इसमें ये कहती है कि अगर एक औरत को, एक वीमेन को कुछ अगर लिखना है, कुछ अगर वो नॉवेलिस्ट या राइटर बनना चाहते तो उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मनी होना चाहिए और उसका एक खुद का रूम होना चाहिए। द फिगर ऑफ जूडिथ शेक्सपियर इज जनरेटेड एज एन हियर, और जूडिथ शेक्सपियर के जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब अगर विलियम शेक्सपियर की बहन होती, अगर उसकी सिस्टर होती, तो आज वो उतनी फेमस नहीं होती जितने कि शेक्सपियर, क्योंकि एक वीमेन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं एज अ राइटर, या हमारी सोसाइटी उतना सपोर्ट नहीं करती वीमेन राइटर को। तो अगर शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की अगर कोई सिस्टर होती, जैसे उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर यहाँ पे जूडिथ शेक्सपियर लिखा है, तो शायद ही वो उनसे ज़्यादा फेमस होती है। एग्जाम्पल ऑफ द ट्रैजिक फेट ऑफ हाईली इंटेलिजेंट वुमेन, इसे देखते हैं ना हम घर में, मतलब बहन कितनी भी पढ़ी लिखी टैलेंटेड है, फिर भी भाई को ज़्यादा मिलता है, या कहाँ बाहर पढ़ाने के लिए बॉयज़ को भेजा जाता है, उन पे पैसे खर्च करने की आज भी टेंडेंसी कुछ बदली नहीं है। तो इसी बात पे इन्होंने रूम्स ऑफ वंस ओन में लिखा है। देन 3 जेनेसिस सीक्वल टू द रूम्स ऑफ वंस ओन, फिर उनका एक सीक्वल आता है 3 जेनेस, जो सीक्वल है रूम्स ऑफ वंस ओन का। दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड दैट वर्जीनिया वुल्फ पे रूम्स ऑफ वंस ओन पे क्वेश्चन आता है। ऑरलैंडो पे, मतलब कौन सा नावल है जिसमें मैन टर्न इनटू अ वीमेन, फिर और इम्पोर्टेंट उनके डार्क नॉवेल्स में ऑरलैंडो, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन टू द लाइट हाउस इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।